months have gone by since we began this beautiful relationship with JBGO, this wonderful Surat-based organization. We did a lot of study before we began, right from one-to-one meetings with the chairman, with the managing director, with all the other directors. We spent a lot of time also with the vice presidents, understanding their perspective. We spent a lot of time with the CFO, the then CEO, and things like that. We also went on the field and did a sales study. We did mystery shopping. We became customers and saw how the team was selling the automobiles to us. And we also observed our sales team in action, how they were selling to other customers. We also spent time on the service floor, especially when vehicles would come in for servicing, and how the service advisor was noting down the complaints or issues, how the service advisor was preparing the job cards, how the entire service team was delivering the vehicle, what kind of experience we were creating for the customers. Today I am here to understand how this relationship has impacted your work, your department's work, and how it has impacted the entire organization. सर, लिबरेशन कोचेस के आने से जो सबका जॉब प्रोफाइल्स है वो पिन पॉइंट हो गया है, जनरलाइज हो गया है और अच्छी रीत से प्रोफेशनल टच मिला है, जिसकी वजह से चेक पॉइंट्स रखे गए हैं और जो 3-3 महीने जो रिव्यूज़ होते हैं कि तो उसकी वजह से ध्यान दिया जाता है कि भाई वो बंदा या तो वो इंसान वही काम तक कर रहा है सही रीत से. Good thing that I like was the PMS reviews that you started. Definitely, I appreciate, and that has helped people to focus on their KRA and KPAs. Definitely, that earlier that was not there. It has been brought in by the LCP. पहले तो जो हमारा KRA KPI डिफाइन किया, हम आते थे काम भी करते थे, सुबह आते थे शाम को जाते थे, नॉर्मल में जो हमको करना है हम करते थे. लेकिन डिफाइन बाद में हुआ कि आपको क्या करना है और कितना करना है. कोई अगर एक चीज़ आपको करनी है तो वो आपको ही करनी है. एक चीज़ अगर मेरे नीचे नीलेश भाई है तो उनको करनी है, कुछ चीज़ें ऐसी जो काउंटर हेड से करवानी है. तो पहले ओवरऑल सारा कुछ हमको ऐसा लगता था कि हमें ही करना चाहिए, लेकिन हमको बाद में पता चला कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है. नहीं करना है का मतलब क्या हमको दूसरों से करवाना है. After Center of Excellence, when the key responsibility areas were formed along with the key performance index, I was able to get exactly what management is expecting me to do. KRA formation and PMS has helped me develop COE in a better way. Professionalism in the people has increased now. अभी लोग पर्सनली चीज़ों को नहीं लेते. पहले इंडिविजुअल अटैक्स होता था, पर्सनली लेते थे, बट नाउ दे अंडरस्टैंड दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन. इन द इंटरपर्सनल स्किल्स in the senior team members have grown. Yes, it's very harmonious now. It's just one. We are one. So one team वाला जो feel है, that I think is everywhere in the JBG. दिशा में जो है ना वो फिक्स हो जाती है कि करना क्या है, मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मेरा जॉब क्या है, एक्चुअली ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेन चीज़ होती है वो उसमें क्लियर होती है. अदरवाइज कैसा होता है, हाँ चलो लीडर है करना है. On management level, there is really a good work has been done. Earlier, it was owner-driven company where it has been reduced. The committee-driven thought process has been cultured. I feel where liberation coaches has worked upon at management level. People know, yes, this organization is really a organization who wanted to grow up so much. Earlier, there was not such people awareness. जो चेयरमैन सर जो चाहते हैं कि JBGO पूरा एक कॉर्पोरेट कल्चर की तरह सिस्टम और प्रोसेस में आ जाए, उसमें हमें LCPL की ओर से बहुत अच्छी हेल्प मिली. एक तो फर्स्ट ऑफ KRA डिफाइन हुआ, COE स्टार्ट हुआ, तो ये 2 पॉइंट जो है उसकी वजह से JBGO में बहुत सुधार आ चुके हैं. एक्सपीरियंस बहुत ही सही था, यानी सबके साथ बैठ के टाइप्स ऑफ लीडर्स का जो था आपने समझाया था, तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स ने, ट्रांजैक्शन लीडर्स ने, वो सब अभी भी याद है.
और बहुत ही कुछ सीखने को मिला कैसे सबके साथ करना है और कौन से अलग अलग जात के लीडर्स हैं। तो मैं कहाँ फिट होता हूँ वो मुझे एग्जैक्टली मालूम पड़ा। टेकन फॉर ग्रांटेड जैसा मेरा था इमेज था, जो मैंने दिखा दिया कि आई एम नॉट द गाय टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड इन एनी वे। पहले वो काम होता था, आज भी हो रहा है, लेकिन प्रोसीजर फॉलो होनी चाहिए, वो मेजर चेंज है। I appreciate that particular leadership training that you have taken. You explained the type of leaderships and it was really a good experience for me. It has definitely helped me in working my style also. टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम था पहले, 10 साढ़े 10 बजे आना, अपने हिसाब से आना, अपने हिसाब से जाना, लेट आना तो लेट जाना। पता चला कि टाइम पे आओ, जैसे हमारे टीआर साहब बोलते हैं टाइम पे आओ और टाइम पे जाओ। फैमिली को भी टाइम दो, आपका ऐसा शेड्यूल करो कि आपका टाइम पे आकर टाइम पे जाने में वो काम पूरा हो जाना चाहिए। यानी आपके आने के बाद बहुत सारे अपने डे गेट टुगेदर हो गए, सीईओ में भी हुआ, वहाँ पे पॉपकॉर्न में भी होगा। तो सब लोगों के साथ बैठने के बाद एक दूसरे को जानने लगे कि भाई इसका नेचर कैसा है, इसको क्या पता है, क्या नहीं पता है, इसको क्या बोलना चाहिए, इसको क्या नहीं बोलना चाहिए, इससे मुझे क्या चाहिए या ये मुझे क्या देगा। तो ज़्यादा एक दूसरे के साथ बैठने के बाद पता चला कि हमको किस तरह से एक दूसरे के साथ काम करना है। एज ट्रेनर्स हमारी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए कॉन्फिडेंस व्हाइल गिविंग ट्रेनिंग और प्लेटफॉर्म स्किल्स। तो लिबरेशन कोचेस की ट्रेनर्स को ऑब्जर्व करके उनके जो T3 के सेशंस हुए हैं विद श्रीराम अय्यर सर, और जो उनसे हम लोगों ने सीखा है वो थोड़ा हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और उससे हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मेरा खुद का और मेरे जो कलीग्स हैं उनकी ट्रेनिंग स्किल्स इम्प्रूव हुई है। हम लोग पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेनिंग कर पाते हैं। हम लोगों को नई नई एक्टिविटीज़ और आइस ब्रेकर्स सीखने मिले हैं, जिससे हमारे ऑडियंस के साथ हम लोग ठीक से कनेक्ट बना पाते हैं। पहले तो ट्रेनिंग का एक्सेप्टेंस लेवल नहीं था, दैट हैज़ कम नाउ विद लिबरेशन कोचेस। ना लिबरेशन कोचेस के साथ हमारा लीडरशिप का ट्रेनिंग हुआ था, दैट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड अ लॉट एंड दे वांट मोर ऑफ सच सेशंस टू हैपन एंड फ्रीक्वेंटली, नॉट ओनली एट द सीनियर टीम लेवल, इवन एट द SMGM लेवल जो हमने बीच में यूनिट बैंक्स का ट्रेनिंग किया था, दैट हैज़ गॉन वेरी वेल। आफ्टर ट्रेनिंग हमने रिव्यू किया था, सो दैट रिव्यू वाज अप्रिशिएटेड अ लॉट कि ट्रेनिंग करने के बाद जो हम पूछते हैं व्हाट यू हैव लर्नड, what all you have understood, what all what all you are actually implementing at your workplace, that is also very important. पहले उनको ड्रेसिंग सेंस से लेके सब कुछ मतलब वो बताते थे, उनको कैसा आना था, कैसे बात करनी थी, ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन वो आफ्टर दैट ट्रेनिंग उनको थोड़ा ग्रूमिंग भी आया हुआ है। इवन अभी तो यूनिफॉर्म्स भी दे दिए कंपनी ने, सो दैट वेल मैनर्ड भी आते हैं। इससे पहले कैसा होता था कि सर जो इंटरव्यूज हम लेते थे उसमें मतलब जैसे ऐसा कुछ मैनर फिक्स नहीं था कि वो वैसा करना है वैसा करना है। लेकिन उसके बाद कैसा हुआ कि कितने टाइप से, पहले तो वो तो समझ में आया कि किसको कौन से तरीके से हमें इंटरव्यू लेना चाहिए। और प्लस कैसा है जो मेरे पास आते हैं कि वो कैसे कि CRE पोस्ट के लिए आएंगे या फिर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए या फिर नॉन मोटर के मैनेजर के पोस्ट के लिए, तो हर एक का अलग अलग स्किल्स रहता है कैसे ले रहा है। और उनका मतलब टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज भी अलग अलग रहेंगे। हर एक मतलब CRE को भी मैं वैसे ले नहीं सकती जैसे मैनेजर को ले रही हूँ। वो चीज़ें मुझे समझ में आई और थोड़ा मुझे नॉलेज मिला कि बाबा हर एक को अलग अलग एंगल से इंटरव्यू लेना है। और थोड़ा सिस्टमेटिक मैथड, मतलब कैसे पहले असेसमेंट कीजिए, एक ही मीटिंग में हाँ चलो चलो आज आ जाओ, कल से आ जाओ, ज़रूरत है, ऐसा नहीं करना है। पहले पूरा एनालिसिस कीजिए, उसके बाद उनको लेना है। ये मैंने वहाँ पे सीखा। There are not many HR persons that have been recruited, and the records that earlier were not available are now available. Definitely, earlier it was missed. Now it has improved. Today we don't have to search for the manpower. The manpower comes with the name of JBGO who wanted to join us as a JBGO. So I think here Liberation Coaches has been made this one of the part to grow upon and have that thought in overall people. Acceptability of new things. For example, PMS, happiness committee, new HR team members, like employee of the month regularly we are doing now. तो पहले सभी बोलते थे होगा 1 महीना होगा 2 महीना होगा बंद हो जाएगा, but now they know
दैट इज वी हैव स्टार्टेड, तो अब बंद नहीं होगा। तो अभी HR टीम के लिए एक्सेप्टेंस लेवल हमारा काफ़ी अच्छा हो गया, दे हैव मेड देयर ओन स्टैंड। पर्सनली जो मैं खुद का अगर मैं बोलूँ तो मुझे एक सिस्टम से काम करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। LCBL इज़ वेरी गुड। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये है कि जैसे मैंने बताया कि आप आने से पहले आपने आने के बाद ये सब कुछ हमको बताया कि भाई आपको क्या करना है, क्या है KPI। आपके आने के बाद हम लोग सब मिलने लगे, सेशंस हुए, ठीक है। उसके पहले भी होते थे, बाद में भी होते थे, लेकिन एक जब हमारे पॉपकॉर्न में सेशंस होते थे, शायद एक सेशन में आप भी थे आखिरी वाले में, उससे पहले मैडम थे, तो एक मज़ा आता था, कुछ सीखने को मिलता था। As an organization, you are working fine, absolutely, and the type of preparation that you do when you come to here and to deliver lecture or take our reviews, definitely they are excellent. There is not a question about it. And I have gone through your materials also, which I bought your book also in the leadership when I attended that particular course. So definitely, yeah, you are doing good. Everything is positive.